Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the reactions of alkynes. Let's start. Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and in this video we are going to cover the content related to alkynes. So बेटा start करते हैं जी general concept से. बेटा alkynes क्या होते हैं? We have saturated hydrocarbons, we have unsaturated hydrocarbons. So alkynes are unsaturated hydrocarbons. यानी कि they have more than one bond. Saturated कौन से होते हैं? जिनके पास carbon single bond होंगे. So in alkenes and alkynes we have double bond or triple bond in between the carbon atoms. So alkynes specifically आपके पास triple bonded carbons वाले compounds होते हैं. So if we have two carbons तो वो होएगा ethyne, then propyne, then butane up to so on. So बेटा यहाँ पे जो structure मैंने यहाँ पे draw किया है, it is of two carbons. So we have to complete the valency of these carbons by putting hydrogens with this and with this carbon. Now it has completed its valency. तो बेटा यहाँ पे हमें observation किस तरह से क्लियर होनी चाहिए कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है. These all things should be clear to you. बेटा जब भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स आ जाएंगे ना, वहां पे होता है sp hybridization. This carbon is sp hybridized carbon. So there is sp hybridization. जब भी sp hybridization होती है, it will form a sigma bond. तो बेटा यहाँ पे एक बन रहा है sigma bond. तो बाकी दो कहाँ से बन रहे हैं? ये दो bonds किस तरह से बन रहे हैं? बेटा अगर एक s और एक p ओवरलैप कर रहे हैं, so it means we have two more p orbitals जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, which combines together by side V overlapping and it will form one pi bond and another pi bond. तो बेटा p और p orbitals जब ओवरलैप करते हैं, साइड वे ओवरलैपिंग उनकी होती है, they will form pi bonds. तो बेटा सिग्मा बॉन्ड एक बन गया कार्बन कार्बन के दरमियान में एंड देयर आर टू पाई बॉन्ड्स व्हिच आर सैंडविच्ड. ठीक हो गया. और इफ एग्जामिनर विल आस्क के जो इथाइन का मॉलिक्यूल है वहां पे जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, तो विल से sp s हाइब्रिडाइजेशन. जिस तरह से आपने एल्कीन्स में डिस्कस किया था, इथीन के मॉलिक्यूल में वी हैव sp2 s hybridization in between the carbon and double bonded carbon and hydrogen. ठीक हो गया. So बेटा उसी तरह से alkyne में this is sp hybridized carbon, तो that is sp s hybridized bond. CH में sp s hybridization होती है. Again जहाँ पे भी sp overlapping होती है वहाँ पे sigma bond आएगा. That is sigma bond. In other words, single bonds जितने भी होंगे वो sigma bonds हैं. If we have more than one bond, अगर double bond है तो the first bond would be sigma और उसके बाद जो होएगा that is pi bond. If we have triple bond तो first bond sigma है, बाकी दो bonds pi bonds होंगे. और इसी तरह से pi electrons का concept है. बेटा alkynes का अगर आप general formula observe करो, we have two carbons और two hydrogens. Double से दो कम hydrogens होते हैं. It has two less hydrogens than the carbons. तो general formula को अगर हम observe करें तो बेटा we have two carbons and two hydrogens in the molecule of ethyne. So बेटा इसके फार्मूले में जितने कार्बन्स होंगे उसके डबल से will have -2 hydrogens. If we have two carbons तो बेटा डबल कितना होएगा 4. 4 minus 2 that is 2. C2H2. C3 डबल होएगा 6. So 6 minus 2 that is 4. So C3H4 that is the next molecule जो कि प्रोपाइन होता है. So बेटा एक तो ये चीज़ क्लियर होगी, जनरल फार्मूला क्लियर हो गया. Now have a look over here कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होएगा. So कार्बन और हाइड्रोजन ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है. So there is 180 angle
180 डिग्री का एंगल होता है, दैट इज लीनियर इन शेप, इट इज लीनियर इन शेप मॉलिक्यूल। शेप क्या होगी? लीनियर होगी, 180 का एंगल होएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई। सो दिस इज एंड दिस वन इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्काइंस, दैट इज द जनरल कॉन्सेप्ट एंड रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, जो कि नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते जाएंगे, their physical properties are becoming more strengthened, melting point, boiling point, density उनकी increase करती रहती है by increasing the number of carbons। ठीक हो गया? एक तो ये concept है हमारे पास। And what about the reactivity? Reactivity decrease होती रहती है by increasing the number of carbons. It means alkynes are becoming more stable जब उनके नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते रहते हैं। एक्चुअली इनिशियल जो आपके पास अल्काइन के मॉलिक्यूल्स हैं ना, दे आर गैसेस। तो गैसेस के बाद वी हैव लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एंड आफ्टर लिक्विड्स विल हैव सॉलिड अल्काइन मॉलिक्यूल्स। सो बेटा बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी कॉमन उसका ट्रेंड होएगा। सो नाउ अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बेटा कम होती रहती है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इट हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होएगी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ फर्दर डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ यानी कि अल्काइंस की स्मॉलर है, इट हैज स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। और अगर स्मॉल है बॉन्ड लेंथ तो बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होएगी अल्केन्स और अल्कीन्स से अगर कंपैरिजन हम करते हैं। स्मॉलर बॉन्ड लेंथ है तो इट मींस इट मस्ट हैव ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। और ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया? ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है तो स्मॉलर बॉन्ड लेंथ है, तो इट मींस कि अल्काइंस के मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दैट इज अराउंड 840 किलो जूल्स पर मोल, और समवेयर अराउंड दिस 838 840 इसके आसपास इनकी एनर्जी होती है, दैट इज in kilojoules per mole. This one is the bond energy. ठीक हो गया जी? ये अल्काइंस की हम बात कर रहे हैं। अल्कीन्स की relatively इनसे कम होएगी because they have greater bond length, that is somewhere around 600 something, और अल्केन्स की 300s में आ जाती है, so that is the opposite concept। ठीक हो गया? bond length अगर ज्यादा है तो bond energy कम है। नॉमेनक्लेचर की तरफ मूव करते हैं। बेटा नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग। IUPAC नेम्स, IUPAC सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वहाँ से डिफरेंट नेम्स हम रखते हैं कंपाउंड्स के। वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इसका हमने नेम बताना है, ऑल्दो दैट इज इथाइन्स मॉलिक्यूल, तो इथाइन के ही नॉमेनक्लेचर को हम डिस्कस करें। इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होएगा? First of all, we have to select the longest chain that contains the functional groups. तो बेटा longest chain को अगर मैं select करूँ तो I can select this one. That is having triple bond और सबसे ज़्यादा carbons भी इसी में मौजूद है. We can select this one also. लेकिन that is totally up to you. If you have equal number of carbons from more than one chains, तो आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो। Now we have to observe कि from which side we have to start the numbering. तो बेटा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कर दी है जहाँ से आपको अल्काइन नज़दीक पड़ रहा है इन दिस वे। सो नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5 एंड दिस वन इज़ 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ब्रांच। अब ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखना है अलॉन्ग विद द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। सो वी हैव दिस ब्रांच दैट इज मीथाइल ग्रुप। सो बेटा नेम इसका क्या बन सकता है? दैट इज 5 methyl 5-methyl। After that we have 2 और ये ट्रिपल बॉन्ड है, so it means this one is hexyne। हेक्साइन की पोजीशन क्या है? That is 2 hexyne।
हेक्स 2 आयन भी कह सकते हैं, 2 हेक्साइन भी कह सकते हैं. सो बेटा दैट इज 2 हेक्साइन. सो दिस इज द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. एक और एग्जांपल करते हैं, देन विल डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल. एक और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. तो बेटा दिस इज द सिंपल स्ट्रेट चेन ही मॉलिक्यूल है, बट इन दिस एग्जाम्पल वी हैव डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी है. ठीक है, यानी कि एल्कीन और एल्काइन दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस स्ट्रक्चर. तो बेटा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से नियरेस्ट आपको फंक्शनल ग्रुप पर रहा है. सो फ्रॉम दिस साइड फंक्शनल ग्रुप यहां पे है आफ्टर द सेकेंड कार्बन, बट फ्रॉम दिस साइड वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप आफ्टर द फर्स्ट कार्बन. सो आई कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3 4 5 and this one is 6. तो बेटा अब नेमिंग का एंड कहां पे होएगा? रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी अल्काइंस आ जाएंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड्स होएंगे, तो नेम का एंड हमेशा आइंस पे करना है. सो इट मींस दिस मस्ट बी वन आइन एट द एंड ऑफ द नेम. यू हैव टू मेंशन वन आइन. और जो स्टार्टिंग नेम होएगा उसके लिए आपने यूज करना है एल्कीन का नेम, दैट इज हैविंग 6 कार्बन्स. तो हम कह सकते हैं हेक्सीन. अब हेक्सीन डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? 4th कार्बन पे है. दैट इज 4 हेक्सीन 1 आयन. दैट इज 4 हेक्सीन 1 ion. So this could be the name. So now this is what you have to attempt this question. IUPAC name of the given compound. पहले खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें. कमेंट में इसका आंसर लिखें. देन यू कैन चेक द आंसर के आइदर आपने जो इसका नाम बनाया है वो ठीक है या नहीं है. सो अब इसके नेमिंग की तरफ मूव करते हैं. बेटा यू कैन सी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड. यहाँ पे तो था ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद, डबल बॉन्ड था फ्रॉम दिस साइड सेकंड कार्बन के बाद, बट नाउ वी हैव ऑन द इक्वल साइड्स. पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है. सो इन दिस वे वी हैव टू फॉलो द रिएक्टिविटी ऑर्डर. एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस. सो नंबरिंग के लिए प्रेफर करेंगे हम उस साइड को जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है. 1 2 3 4 5. तो हमने ये नंबरिंग को फॉलो करना है. तो बेटा नेमिंग क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको ब्रांचेस का नेम लिखना होता है. सो वी हैव 2 ब्रांचेस. मिथाइल है, 3rd कार्बन पे 3 मिथाइल है और 3 इथाइल है. बेटा अब 2 ब्रांचेस हैं, दोनों ब्रांचेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा. ठीक है, E comes first then M. तो बेटा 3 इथाइल पहले लिखेंगे हम, 3 इथाइल 3 मिथाइल. आगे से कॉन्सेप्ट वही है जो हमने यहां पे यूज किया है. नेमिंग एंड होएगी किस पे? ट्रिपल बॉन्ड के नेम के साथ. ठीक है, तो दिस नेम वुड बी 1 pentene 4 ion. ठीक हो गया? सो दैट इज द नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट को फर्दर ऑब्जर्व करना है. हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन. विच कंपाउंड हैज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन? बेटा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव लवर होएगा कार्बन. सो इट मींस इट शुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज. ठीक हो गया? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी होएगी, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी वो कार्बन होना चाहिए. सो बेटा अगर आप बात करते हो अल्कोहल की, इन द अल्कोहल वी हैव कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द OH. CO बॉन्ड है. सो O इज नेगेटिव,
तो कार्बन को पॉजिटिव होना पड़ता है. सो पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. सो ये तो नहीं हो सकता. अल्कोहल हैज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. एल्डिहाइड्स में वी हैव कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप में this is the concept. Oxygen is partial negative, so carbon is partial positive. Again this one is the electrophilic carbon. Carboxylic acid में भी कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, so it is again electrophilic carbon. In a molecule of alkyne, बेटा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ड्यू टू दिस थिंग, ये जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, दिस कार्बन बिकम्स पार्शियल नेगेटिव. ऑन अदर साइड वी हैव हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव होएगा. सो बेटा ये पार्शियल नेगेटिव है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन. ठीक हो गया. इट इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? दैट इज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. दिस कार्बन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो पार्शियल नेगेटिव की वजह से दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक कार्बन. विच कंपाउंड हैज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन? सो बेटा विल सेलेक्ट द अल्काइंस. हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी हैव टू न्यूक्लियोफिलिक कार्बन्स. एक तो है अल्काइन का, एंड द सेकंड वन दैट इज यूज्ड इन द ग्रिग्नॉर रिएजेंट. जब भी कोई ग्रिग्नॉर रिएजेंट आता है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, सो बेटा वहां पे मैग्नीशियम इज पार्शियल पॉजिटिव. सो दैट्स व्हाई जो कार्बन होता है अल्काइल ग्रुप का, इट बिकम्स अ नेगेटिव कार्बन. ठीक हो गया. सो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो कार्बन का हो जाता है. सो that is important point. Please remember this one, और MCQ में ये पूछा जा सकता है आपसे. So now moving towards the preparation. Preparation के दो methods MDCAT आपको कहता है कि आपको पता होने चाहिए. elimination methods. Dehalogenation of vicinal dihalide. Dehalogenation भी है और that is dehydrogenation भी है. ठीक हो गया जी. सो कलेक्टिवली हम इसको कह देते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं इसको? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides. What are vicinal dihalides? Dihalides mean two halogens. Two halogens attach हैं और adjacent carbons पे. बेटा adjacent carbons पे जब halogens होते हैं, they are called vicinal dihalides. They are called vicinal dihalides. So let's draw a structure of vicinal dihalide. This is carbon. This is carbon. It has these bonds. Vicinal dihalide यानी कि यहाँ पे आपके पास है Cl. On this side you have Cl. The remaining bonds are carbon-hydrogen bonds. So dehydrohalogenation. बेटा dehydrohalogenation जब भी होनी होती है, we have to use a strong base. जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज करनी होती है अल्कोहलिक मीडियम में. So we have to use the same thing. अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज होएगी. और दिस इज द सेम रिएक्शन जब सिंपल अल्काइल हैलाइड्स होते थे. सो बेटा प्रोसेस आपने बीटा एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा होता है. एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए भी बीटा एलिमिनेशन की जाती थी. सो अल्कोहलिक KOH इज द सेम थिंग जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे यहाँ पे भी एक्ट करेगी. इट विल गेट दिस Cl और दिस OH विल गेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन. सो अगर यहाँ से Cl रिमूव होता है, so from this carbon कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. So this is the concept, and in this way the double bond is formed in between these two carbons. So removal process को देखते हैं किस तरह से होएगा, and we'll get what product after that. So बेटा this carbon has removed this hydrogen, so it is left with one hydrogen
and 1 chlorine now. So this carbon has removed this Cl, so it is left with this hydrogen and this hydrogen now. So the double bond is formed in between these two carbons. So बेटा ये बन गया आपके पास, that is called as vinyl chloride. That is called as vinyl. That is called as vinyl. CH2CH. इस चीज को हम कहते हैं vinyl. That is known as vinyl. CH2 double bond CH. This is called vinyl. So we have one Cl along with this. So हम इसको कह देंगे vinyl chloride. That is vinyl chloride. Further इस reaction को अगर हम proceed करवाएं, so it is difficult to remove another hydrogen halide from this molecule, क्योंकि vinyl group जब आ जाता है तो बेटा it is more stable. ठीक हो गया? ये ज़्यादा stable है. So it needs more energy to remove another HCl. So यहाँ पे जो process होता है, in this way we have to use 80 degree Celsius temperature. तो बेटा stable ज़्यादा है, more stable. अगर ज़्यादा stable है this vinyl group, तो it needs more energy. तो बेटा इसलिए यहाँ पे जो temperature होता है it should be greater than that one, और 150 के अराउंड टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं अंडर सेम कंडीशंस, जो अल्कोहलिक KOH होता है उसी को यूज़ करते हुए, एंड विल गेट द सेम रिजल्ट. एक और H और Cl रिमूव हो जाएगा फ्रॉम दिस साइड. नाउ Cl इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम दिस साइड, हाइड्रोजन विल रिमूव एंड विल गेट द प्रोडक्ट, जो कि क्या हो जाएगा, C इज गेटिंग वन हाइड्रोजन and the triple bond is formed, C is getting one hydrogen. So beta in this way you are getting ethine molecule. So this is the elimination process. Elimination जब भी होती है bond की formation होएगी. Dehydrogenation, dehalogenation, dehydrohalogenation, dehydration. So बेटा जब भी removal होएगा, D का word जब भी use होता है, it means removal process. Removal किसकी हो रही है, halogen की, और removal किसकी हो रही है, hydrogen की. So that is collectively known as dehydrohalogenation. ठीक है? It always carried out in the presence of alcoholic base, जो कि strong base होनी चाहिए. NaOH और KOH यूज कर सकते हैं. अब मूव करते हैं dehalogenation की तरफ. जब रिमूव करना है आपने just halogens को, in that way you can use zinc metal, reactive metal को यूज कर सकते हैं. more readily reactive metal यूज करनी होती है. और टेट्राहेलाइड्स है आपके पास, टेट्राहेलाइड्स में से हैलोजेंस को रिमूव करना है. कितने हैलोजेंस रिमूव करेंगे? लेट्स ऑब्जर्व द मॉलिक्यूल. वी हैव C. टेट्राहेलाइड्स का मतलब हुआ 4 हैलोजेंस है. 1 2 3 4, तो बाकी CH बॉन्ड्स होंगे. दिस इज टेट्राहेलाइड मॉलिक्यूल. नाउ वी हैव टू रिमूव द हैलोजन. जब भी हैलोजन को जस्ट रिमूव करना है तो बेटा उसका मेटल के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप. सो वी विल यूज जिंक मेटल, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूज करते हैं. जिंक को एक क्लोरीन यहां से मिल जाएगा और एक क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन से मिल जाएगा. एक ही कार्बन से पहले दोनों रिमूव नहीं हो सकते. ठीक हो गया? सो इन दिस वे it will get 2 halogens and zinc chloride will form in this way, plus CH, Cl रह गया, and the double bond is formed, CH, Cl रह गया. ठीक हो गया? So beta now we have to remove another halogen from each carbon. फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा. एक Cl यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, एक Cl यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, एंड इन दिस वे विल गेट इथाइन मॉलिक्यूल. और प्रोडक्ट क्या बना आपके पास? दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इथाइन की प्रिपरेशन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक.
मेटल। ठीक हो गया। सो दिस इज डीहैलोजिनेशन प्रोसेस। तो बेटा रिएक्टिविटी की अगर हमने यहां पे बात की है, विनाइल ग्रुप दैट इज हैविंग द डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। इस ग्रुप को मैंने जो कहा विनाइल दैट इज एलाइल, अगर नेगेटिव वे में हम इसकी बात करें तो इसको अगर ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है, इट मींस रिएक्टिविटी ट्रेंड पे भी ये अफेक्ट करना चाहिए फिर तो। सो अब रिएक्टिविटी ऑर्डर को जरा देखते हैं। बेटा जनरल कॉन्सेप्ट में आपके पास एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है और बेंजीन है इस चैप्टर में। तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम डिस्कस करें तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्कीन। Alkenes are more reactive than alkynes, and alkynes are more reactive than benzene. Benzene is more reactive than alkane. Beta, we know कि alkane has single bond that is sigma bond, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाती है और इनर्टनेस इसकी होती है, इनर्ट है। लेकिन बेंजीन स्टेबल क्यों है? बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता था, रिमेंबर दैट। सो डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन भी स्टेबल हो जाता है, इसलिए लेस रिएक्टिव है। डीलोकलाइजेशन जब भी होती है रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। वी नो ना कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है इट मींस दैट इज लेस रिएक्टिव। तो बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सो इस वजह से ये रिएक्टिव कम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एल्कीन्स में वी हैव डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिएक्टिव ज्यादा हो गया। सो अल्काइंस में तो वी हैव टू पाई बॉन्ड्स, तो टू पाई बॉन्ड्स होने की वजह से इसको तो अल्कीन से और ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। बट नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस थिंग, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है। बेटा इन अल्कीन मॉलिक्यूल द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, इन द मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन कार्बन कार्बन के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी शॉर्ट होती है बॉन्ड लेंथ। तो जितनी ज्यादा शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है इट हैज लेस रीजन जहां पे अटैक हो सके, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ से। सो इन दिस वे अल्काइन इज बिकमिंग लेस रिएक्टिव, और ये जो जनरल ट्रेंड है दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोफाइल्स, दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। क्योंकि वी नो जब एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं सो वहां पे एडिशन रिएक्शन होती है, एंड एल्कीन्स आर शोइंग एडिशन रिएक्शंस, अल्काइंस आर शोइंग एडिशन रिएक्शन। वो कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है? दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, इनकी एडिशन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें अल्कीन का डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अटैकिंग ऑन एनी पॉजिटिव रिएजेंट। ठीक हो गया। इसी तरह अल्काइन में वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, वहां से अटैक स्टार्ट होता है। सो बेटा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन कौन सा रिएक्शन शो करता है? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, डबल बॉन्ड तो है लेकिन दे आर शोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन आर रिलेक्टेंट टुवर्ड्स द एडिशन रिएक्शंस एंड दे आर रेडिली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। एल्केन्स आर शोइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, जहां पे सिंगल बॉन्ड होएगा, जहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो बेटा वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। सो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, एंड दीज टू विल गिव यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। लेकिन बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर न्यूक्लियोफिलिक की हम बात करें, रिएजेंट की बात करें, सो alkynes are
more reactive than alkenes. When nucleophilic reagent is involved in the reaction. बेटा रीज़न क्या है? यही जो अभी मैं बता रहा था कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, कार्बन कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एल्कीन्स में स्पेस ज़्यादा है, सो अटैक इजीली हो जाता है. सो अल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल. लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पे अटैक होता है, सो इन दैट केस बेटा रिएक्टिविटी अल्कीन्स की ज़्यादा होगी. ये की कॉन्सेप्ट याद रखना है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की अगर बात की जाएगी तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है. अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात की जाएगी तो अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स. ठीक हो गया. और इसकी एग्जांपल है आपके पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन. सो नाउ हैव अ लुक ओवर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस. ये तमाम है रिएक्शंस हमारे पास. ठीक हो गया. हाइड्रोजनेशन है, वी हैव हाइड्रोहेलोजिनेशन, वी हैव हाइड्रेशन, and we have some of the reaction जो कि acidic behavior of alkynes को show करेंगे. So बेटा start करते हैं. पहले हम hydrogenation of alkynes को discuss करते हैं. So बेटा we know कि hydrogenation is a process जिसमें double bond break हो जाएगा and hydrogen molecule is added over those carbons जिनके दरमियान में unsaturation पाई जा रही है, यहाँ जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है. सो वी हैव ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हियर, दिस वन एंड दिस वन. सो बेटा दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एडेड. एक बॉन्ड ब्रेक होएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इथीन मॉलिक्यूल CH. एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑन बोथ एटम्स विल गेट दैट. हाइड्रोजन दोनों साइड्स पे आ जाएगा. रिमेंबर जब भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है वी हैव टू यूज कैटलिस्ट फॉर दिस एंड दैट इज निकल कैटलिस्ट. निकल कैटलिस्ट अगर हम यूज करते हैं तो वी हैव टू यूज 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. और इफ विल यूज प्लाटिनियम और प्लाडियम तो जनरल रूम टेम्परेचर पे ही हम उस रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं. सो बेटा वी आर गेटिंग एल्कीन इन दिस वे. एल्कीन फर्दर हाइड्रोजनेशन होके it will give you alkane. So we'll get CH3. Double bond further break हुआ और single bond में convert हो गया and in this way we are getting this product. So बेटा alkyne की hydrogenation is giving us alkene. Alkenes की hydrogenation is giving us alkane. तो यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ मूवमेंट हुई है. तो अगर इफ वी वांट टू ब्रेक दैट रिएक्शन ओवर हियर, अल्कीन बन जाए और रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाए, इन दैट वे वी हैव टू यूज पार्शियल हाइड्रोजनेशन. ठीक है. तो हम ये स्पेसिफिक कंडीशन जो निकल कैटलिस्ट की यूज करते हैं दैट इज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. तो वहां पे रिएक्शन अल्कीन पे स्टॉप नहीं होएगा जब तक अनसैचुरेशन पाई जाएगी, हाइड्रोजन ऐड होता रहेगा. सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट रिएक्शन ओवर द अल्कीन्स. अल्कीन जैसे ही फॉर्मेशन होए और रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाए. सो फॉर दिस वी हैव टू यूज पार्शियल हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट. पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होएगा? इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन वर्ड से तो यही पता चल रहा है हमें. सो पार्शियल हाइड्रोजनेशन बेटा पार्शियल हाइड्रोजनेशन में वी हैव दिस इज सेंट्रल अल्काइन. सेंट्रल अल्काइन में वी आर यूजिंग दिस कैटलिस्ट लेड बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन. दैट इज द नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है एंड इट विल ब्रेक डाउन दिस डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में. सो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होएगा इस प्रोसेस में, ऑल्दो दिस इज अगेन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, तो बेटा इसमें हमने क्या ऐड करना है? H2 को ऐड करना है. ठीक हो गया. H2 को ऐड करेंगे, इट विल ब्रेक द डबल ट्रिपल बॉन्ड. CH3 था, C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया एंड CH3.
नाउ वी हैव दीज टू बॉन्ड्स ओपन. सो यहां पे दोनों हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे इन दिस वे. तो बेटा नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा. एल्कीन्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व करना है. बेटा whenever we are using this catalyst that is known as Lindlar's catalyst, so it will give us cis alkenes. We have butane, तो we'll get cis butene जो कि 2-butene होएगा. cis 2-butene आपको मिलेगा. cis कौन सा होएगा? in which CH3 over here और उसके opposite side पे on this side we have hydrogen. So इसी के अगर structure को मैं यहाँ पे लिखूं तो it would be like this: CH3 CH, that is double bond, double bonded carbons आ गए on this side. We have CH3 on this side and hydrogen on this side. So beta, this is called cis 2-butene. Cis 2-butene is obtained when we will use Lindlar's catalyst. So that is the same type of question. Lindlar's catalyst in hydrogenation of 2-butene, this is 2-butene, will give us cis 2-butene. अगर यहाँ पे आ जाए 2-pentyne तो बेटा प्रोडक्ट क्या होएगा आपके पास? 2-pentyne will give you cis 2-pentene. That would be your product. cis 2-pentene बनना चाहिए. So बेटा अगर इसी की जगह पे आप दूसरा कैटलिस्ट यूज करते हो, दैट इज सोडियम और लिक्विड अमोनिया के अंदर ये डिप किया हो, इन दिस वे यू विल गेट द ट्रांस एल्कीन. सो सिस एल्कीन को ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू यूज द लिंडलर्स कैटलिस्ट. और अगर यू वांट टू प्रिपेयर ट्रांस एल्कीन जो कि रिलेटिवली लेस बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, दैट इज ट्रांस एल्कीन. तो ट्रांस एल्कीन को अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया एट 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो इन दिस वे विल गेट द प्रोडक्ट CH3 C. On this side we have one hydrogen जो कि addition से होएगा, but that is called as reduction process. We have to use nascent hydrogen here. Nascent hydrogens को use करेंगे and alkenes आपके पास product में आ रही है, that is trans alkene. So on this side we have hydrogen and on this side we have CH3. So beta this molecule is trans 2-butene. Trans 2-butene जो होता है बेटा, that is having low boiling point, zero dipole moment, and this is non-polar. But this one is considered as a polar molecule. इसका dipole moment भी होता है और boiling point भी ज़्यादा होगा. Remember this point. MCQ पूछा जाएगा इसका. ठीक हो क्या जी? So alkynes का now will observe the reaction with water. Hydration. Hydra means water. Wateration. Addition से यहाँ पे use करें because alkynes have to show electrophilic addition reactions. बेटा hydration में वाटर की एडिशन करनी है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है, और ये जब एडिशन होएगी सो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? एक बॉन्ड टूट जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड CH on this side. So beta OH will attach on one side and AH will attach on one side. So ये आपके पास बन गया विनाइल अल्कोहल. अगेन ये विनाइल का कॉन्सेप्ट आ गया. दिस इज विनाइल अल्कोहल. तो बेटा विनाइल अल्कोहल जो होंगे रीअरेंज हो जाते हैं और ये ओवरऑल जो विनाइल अल्कोहल आपके पास बन रहा है इट विल रीअरेंज इटसेल्फ, और रीअरेंजमेंट से इट विल गिव यू द फाइनल प्रोडक्ट जो कि होएगा CH. ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाए और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, CH3 COH. So it means we are getting aldehydes.
तो रिमेंबर द सीक्वेंस. Alkynes की हाइड्रेशन will give you vinyl alcohols and vinyl alcohols rearrange हो जाते हैं. Rearrangement से they will give you the aldehydes. बेटा aldehydes हमेशा नहीं बनेंगे. Remember, if you have two carbons in the alkyne molecules, यानी कि ethyne होएगा, only ethyne will give you ethanol. ठीक है? Aldehydes can only be obtained by using ethyne. If we have propyne, if we have butane, if we have pentyne, so beta they will give you ketones. All right. Let's have a look over the question. Which product is obtained from hydration of butane? So let's discuss this example here. So beta butane CH triple bond C CH2 CH3. This is butane. If we have to add water in this, और conditions क्या होती हैं? Mercury sulfate, HgSO4 and concentrated sulfuric acid use करना होता है आपने H2SO4 concentrated form में. So hydration में double bond ने break होना है, triple bond ने break होना है यहाँ पे. And H will add on one carbon, OH will add on one carbon. Now we have to remember, beta Markovnikov's principle क्या था? The addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene or alkyne to an unsymmetrical reagent. ठीक है? This is unsymmetrical reagent. इसके triple bond के एक side पे we have carbon that is not having any hydrogen, but on the left hand side we have one hydrogen. तो बेटा negative reagent goes to that carbon that has least number of hydrogen atoms. So ये जो OH है that is negative reagent, तो ये किस carbon के पास जाएगा? जिसके पास less hydrogens है. So we'll get the product in this way, CH2 C, that will get one hydrogen, और triple bond convert हो गया double bond में, and in this way the chain would remain same. जो बाकी है CH2 और CH3 वैसे का वैसा ही रहेगा. Again आपके पास उसी तरह की फॉर्मेशन आ गई. So बेटा in this case rearrangement जब होएगी, double bond will come over here, और ये भी साइड कार्बन के साथ अटैच है, ये भी साइड कार्बन के साथ अटैच है. इन दिस वे बेटा कीटोन का मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है? इन दिस वे कीटोन्स विल फॉर्म. सो आपके पास बनेगा ब्यूटानॉन. इसकी रीअरेंजमेंट विल गिव यू ब्यूटानॉन. ब्यूटानॉन. So बेटा प्रोडक्ट क्या होएगा? Which product is obtained from the hydration of butane? Butanol नहीं बन सकता, butanol नहीं बन सकता, only ethanol hydration of ethyne से बन सकता है. Butanon, yes, this is your required product, so we'll move with the C option. Hope so ये question clear हो गया होगा. Now moving towards the next chemical reaction, that is hydrohalogenation. बेटा hydrohalogenation, हाइड्रोजन और हैलोजन की एडिशन इन द अल्काइन मॉलिक्यूल. सो लेट मी टेक वन मॉलिक्यूल हियर, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज प्रोपाइन. प्रोपाइन में अगर आप HCl की एडिशन करते हैं तो बेटा again you have to apply the Markovnikov's principle. The negative reagent goes to that carbon that has least number of hydrogens. So this is the carbon that has least number of hydrogens. So Cl will attach with this thing and hydrogen will move to the second carbon जिसके पास एक हाइड्रोजन है. तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? You will get the product CH3C double bond में convert हो गया, and this carbon will get one chlorine and this is CH2. बेटा अगर फर्दर इसमें आपने हैलोजन को ही ऐड करना है, हाइड्रोजन हैलाइड को ही ऐड करना है, दैट इज HX, और यहां पे X क्या यूज कर रहे हैं हम? Cl यूज कर रहे हैं. अगेन वी हैव टू अप्लाई द Markovnikov's principle. द Cl, that is the negative reagent,
it will go to that carbon that has least number of hydrogen atoms. तो ये दोबारा से उसी कार्बन पे जाएगी. So आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? You will get the product CH3. C will get one halogen over here and the double bond is going to break down और ये हाइड्रोजन इस CH2 के पास जाएगा and it will convert into CH3. So यहाँ पे दोनों halogens एक ही कार्बन पे अटैच हो रहे हैं. बेटा this type of molecule is called as geminal halides. तो जब भी हाइड्रोहेलोजिनेशन हमारे पास अल्काइंस की होगी, it will give you the product geminal dihalides. Remember this thing. Vicinal dihalides अगर साथ वाले कार्बन्स पे हैं. Geminal dihalides when both halogens are attached over the same carbon. So this halogen, this overall organic compound is named as geminal dihalide. और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? 2,2-dichloropropane. So beta geminal dihalides. Now moving towards the last type of reaction, that is the reaction of alkyne जो कि acidic behavior को show करेगा, acidic nature को show करेगा. Acidic nature of alkynes को represent कर रहा है. बेटा we know alkynes are acidic in nature. It means they have to show reaction with the metals. Metals के साथ reaction करेंगे, hydrogen gas release होएगी. Base के साथ reaction करेंगे, so it will give you sodium replacement हो जाएगी और base आपके पास बन जाएगी. So this is sodamide जो कि एक strong base है. ये this reaction is known as neutralization reaction, acid base reaction, acid metal reaction, that is displacement reaction. So बेटा displacement reaction को पहले observe करते हैं. अगर acid है तो acid has to remove the hydrogens. So we have to use 2 sodium atoms here ताकि ये दोनों hydrogens के साथ replace हो जाए और hydrogen gas यहाँ से release हो जाए. So we'll get the product that must be Na attached with the C and triple bond would remain same. This C is having another Na plus H2. So we are getting this result. Again यहाँ पे ये process move करेगा in this way. This hydrogen we have this terminal alkyne. So H के साथ replacement again हो जाएगी and we are getting CH3 C triple bond C and Na plus NH3. So we are getting this result. बेटा this is called sodamide जो कि बेस के तौर पे एक्ट कर रही है. So this reaction is called as neutralization reaction and the first reaction is called as displacement reaction. अब alkynes की यहाँ पे हमने discussion की है acidic behavior की. Why alkynes are acidic in nature? That is very important question और डिटेल में काफ़ी डिस्कस भी किया जाता है इसको FSC में. But this topic is not included in A levels content. तो A levels के स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छी तरह से फोकस करें क्योंकि alkynes का बहुत ही माइनर सा कॉन्सेप्ट आपके पास होता है. So बेटा alkynes यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं. So this is the carbon that is sp hybridized carbon. This is the carbon that is sp hybridized carbon जो कि हम इसके फर्स्ट पार्ट में भी वीडियो के देख चुके हुए हैं. So sp hybridization में 50% S करेक्टर होता है और 50% P करेक्टर होता है. S करेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना वो कार्बन is getting the negative electronegativity. Electronegativity उतनी ही ज्यादा होती है and that's why it is carrying a negative charge क्योंकि इसकी S करेक्टर ज्यादा है, इसमें S करेक्टर ज्यादा है. जितना S करेक्टर ज्यादा है उतना ही नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है. So that's why carbon is getting the negative charge on it. नेगेटिव चार्ज कब आता है? When it attracts the electrons towards itself more. So बेटा तब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है. We have this bond C और H. We have 2 electrons here. So ये दोनों electrons जो हैं they are more attracted towards this carbon.
ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई कार्बन इज गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और इसी वजह से बेटा यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये दिस बिकम्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये रिमूव हो जाता है, एंड इन दिस वे अल्काइंस आर शोइंग देयर एसिडिक बिहेवियर। रिमेंबर वन पॉइंट, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना अल्काइंस की, बेटा दैट इज ओनली फॉर दोज अल्काइंस जिनके पास हाइड्रोजन होएगा एक साइड पे। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैज हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैज हाइड्रोजन, यानी कि टर्मिनल अल्काइंस will show the acidic behavior, will show the acidic nature। अगर सेंट्रल अल्काइंस होंगे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड अगर सेंटर में है तो कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, सो इफ दे डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, सो हाउ दे कैन रिमूव हाइड्रोजन और एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे। सो ओनली टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। गॉट इट? सो अब इस क्वेश्चन को देखें जी, विच अल्काइन is not acidic in nature? Which alkyne is not acidic in nature? So first option पे देखें तो बेटा यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है आपको, दिस इज द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, दीज आर द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और उसके एक हाइड्रोजन मौजूद है। सो दिस इज टर्मिनल अल्काइन, so it is acidic in nature, तो we cannot select this option। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, यहां पे ये जो दो कार्बन हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, दे डोंट हैव एनी हाइड्रोजन, सो दिस इज सेंट्रल अल्काइन, इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूव नहीं हो सकता और एसिडिक बिहेवियर को ये शो नहीं कर सकता, सो दे आर नॉट एसिडिक। आगे ऑप्शन में देखते हैं सी, ऑल्दो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, शायद कुछ स्टूडेंट इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं कि तमाम तो सिंपल अल्काइंस है, बट दिस इज ब्रांच्ड अल्काइन, सो ब्रांच्ड अल्काइन शायद एसिडिक हैं शायद नहीं है, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंफ्यूज करता है इस एमसीक्यू में। बट यू जस्ट हैव टू स्टक विद द बेसिक कॉन्सेप्ट कि इफ़ यू हैव टर्मिनल अल्काइन तो बेटा move with that thing, that must be acidic in nature, तो ये भी acidic है, so that's why we cannot select this one। और ये भी बिल्कुल सिंपल है, that is 1-butene it has terminal carbon, terminal alkyne है, and terminal carbon जो है इसका it is having one hydrogen, so that is acidic in nature, so we cannot select this one। so answer आपके पास बेटा कौन सा होएगा, which one is not acidic? that is B option, it is not acidic in nature। Got it? So बेटा यही तमाम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, एसिडिक बिहेवियर की वजह से इट इज रिएक्टिंग विद द सोडियम और सोडामाइड के साथ रिएक्शन होता है। और मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है अल्काइंस के लिए, इफ यू हैव टर्मिनल अल्काइन और सेंट्रल अल्काइन तो बेटा वी कैन यूज द टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। Tollens reagent test is used to identify the nature of the alkyne. Either they are acidic or not acidic. Either they are terminal or not terminal or central. ठीक हो गया? So beta this is terminal alkyne, so it will give Tollens reagent test. किस तरह से होता है? So बेटा सिल्वर मेटल ने रिप्लेस होना है, बिकॉज मेटल तो यहाँ पे जस्ट यही है सिल्वर। So silver metal will replace with the hydrogen. So we'll get the product CAG, triple bond CAG. Acetylides बन जाते हैं silver के acetylides, ठीक हो गया? And in this way, this ammonium ion will get this nitrate and it will form ammonium nitrate plus H2O, because we have two hydrogens here and we have OH on this side as well. So बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास H2O का आ जाएगा। सिमिलरली बेटा यही प्रोसेस यूज होता है क्यूप्रस क्लोराइड के लिए भी। विल गेट अमोनियम क्लोराइड और कॉपर मेटल रिप्लेस हो जाएगी इन हाइड्रोजन्स के साथ और कॉपर दोनों साइड्स पे अटैच हो जाएगा जहाँ पे सिल्वर लगा हुआ है, ठीक है। So the same reaction will happen
बस प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इनके कलर्स में डिफरेंस आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके पास सिल्वर है सो इट विल गिव यू वाइट प्रेसिपिटेट। इफ you are reacting alkynes with ammonium hydroxide और cuprous chloride के सॉल्यूशन के साथ, in this way you will get the reddish brown precipitates। ठीक हो गया? इसके लिए reddish brown precipitates आ जाएंगे आपके पास। एंड फॉर दिस जब एसिटालाइट सिल्वर के बनते हैं तो यू विल गेट वाइट, और जब कॉपर के एसिटालाइट्स बनेंगे यू विल गेट रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। होप सो अल्काइंस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट कंटेंट है, प्लीज़ फोकस करें, खुद प्रैक्टिस करें, एंड मस्ट मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक है जो कि फर्दर डू यू वांट टू डिस्कस, या क्वेरीज को अपने डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि उस पर फर्दर फीडबैक अपना दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।